فقہ شریعت اور طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16۔ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے رجب المرجب کی 16ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں، میرا پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو بے زبانوں پر، بے زبان مخلوق پر ظلم کرنے کی عادت پڑ گئی ہو تو اس کو کس طریقے سے منع کیا جائے یا سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے؟ یا کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، میں رحم دل انسان بن جاؤں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا اوراد ہے کہ وہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی دور فرما دے اور اس کے دل میں رحم دلی اور نرمی آ جائے؟ اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو پیار سے سمجھائے اور اس طرح کی روایات اور حکایات سنائی جائے جس میں جانور کو ظلم کرنے کی ممانعت ہے، اور اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرایا جائے۔ تو اب سمجھانے سے ظاہر فائدہ تو ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، سمجھاتے رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی سمجھ میں آ ہی جائے گا، اور وہ نہیں بھی سمجھتا تو ہمیں سمجھانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دل میں اصل وہ نرمی پیدا کرنے کے لیے سختی کے اسباب دور کرنے ہوں گے، اور سختی کے اسباب ایک دو نہیں ہیں، کئی ہیں، جن میں یہ کہ گناہ کرنا یہ بھی سختی کا سبب ہے۔ گناہ کے علاوہ بعض وہ کام کے جو گناہ نہیں ہے پھر بھی وہ سختی کا سبب ہے دل کی، جیسے کہ فضول بات، فضول ہنسنا، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، یہ بھی سختی کے اسباب ہے۔ اور بھی کئی دل کی سختی کے اسباب کتابوں میں لکھے ہوئے، تو یہ اسباب دور کرنے ہوں گے تب کہیں جا کر دل نرم ہوگا۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اور التجائیں کرتا رہے کہ وہ دل کو نرم کر دے، تو اللہ کریم مالک ہے، مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ دلوں میں نرمی بھی عطا فرما دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بندہ یہ کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع کرے
اور اس سے आजिज़ी करे गिड़गिड़ाए तो इंशाअल्लाह उससे नरमी की भीख भी अता हो जाएगी। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हजरत मैं मोहम्मद अदनान मिर्जा बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि हक महर अदा करने के लिए मसला है कि हम अपनी बीवी से हक महर माफ करवा सकते हैं, और आजकल के दौर में बहुत ज्यादा ये आम होता जा रहा है कि हक महर हम देते नहीं अपनी बीवियों को, तो क्या ये हक तलफी नहीं है? तो जब मुआफ सख्ती से करवाएंगे, धमकी देकर करवाएंगे, अव्वल तो मुआफ होगा कैसे? तो इसलिए वो शरअन अगर वो फकीर है, भर ही नहीं सकता तो माफी मांग लेता है, और वो माफ कर देती है तो माफ तो हो जाएगा जबकि वो माफ कर दे। लेकिन बिला इजाजत शरई उससे माफ करवाना मना है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। 5 वक्त नमाज में जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, तो सवाल यह है कि 5 वक्त नमाज में पढ़ने वाला वजीफ़ा ये इरशाद फरमा दें। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़े तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये कि हर नमाज के बाद वो 33 टाइम सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम अल्लाह अकबर पढ़े, या 33 टाइम अल्लाह अकबर पढ़े और एक बार आखिर में चौथा कलेमा पढ़ ले। ये वो औराद हैं जो हदीसों में आए। एक बार कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ ले। इसके अलावा और भी कई औराद हैं तो शजर कादिरिया में लिखे हुए, ये आपको मदनी पंचसूरे में भी मिलेंगे। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक की रिज़ा चाहने की ख्वाहिश रखना अहले ईमान का तरीका है। अपनी खुशी पर अल्लाह पाक की रिज़ा को तरजीह देना, नर्म गुदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाह इलाही में सरबा सुजूद होना, अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए दोस्ती करना और उसी की खातिर दुश्मनी रखना और अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करते रहने में ही नजात है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, रिज़ा इलाही की फ़िक्र कैसे बेदार रखी जाए। इसके लिए बंदा ऐसों की सोबत इख्तियार करे जो अल्लाह की रिज़ा तलाश करते हैं। आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करे, नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करे। सोहबत को इस्लाह आमाल में बड़ा दखल है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, न अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, न बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। फिर रिज़ा इलाही की अहमियत पर मालूमात हासिल करें तो इस सिलसिले में मिनहाजुल आबिदीन का मुताला भी मुफीद है। मुकाशफतुल कुलूब का मुताला भी फ़ायदेमंद, और इह्याउल उलूम की तो क्या बात है। तो इस तरह मुताला करेंगे तसव्वुफ़ का तो इसमें भी रिज़ा इलाही के पूरे पूरे बाब होते, चैप्टर होते। तो ये पढ़ने से इंशाअल्लाह रिज़ा इलाही का जज्बा मिलेगा। हदीसें पढ़ेंगे, फिर ये के बुज़ुर्गों की हिकायात पढ़ेंगे तो वो ज़रा दिल पे असर होगा। जब दिल पर असर होगा तो रिज़ा इलाही पाने का जहन भी बनेगा कि मैं सिर्फ वही काम करूं जिसमें मुझे अल्लाह की रिज़ा और अल्लाह की खुशनुदी मुझे हासिल हो, और हर उस काम से बचूं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी होती हो। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
امیر اتاری ہے، میرا تعلق پنجاب ضلع پاک پتن شریف سے ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و عظمت کیسی تھی، اس پر کوئی واقعہ بیان فرما دیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینے آئے، اپنی بیٹی سے ملنے گئے اور بستر پر بیٹھنے لگے تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر الٹ دیا اور فرمایا یہ اللہ پاک کے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک بستر ہے اور تم شرک کی وجہ سے ناپاک ہو، اس لیے تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نے اپنے باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد ابو سفیان ایمان لے آئے تھے اور صحابیت کا شرف پایا تھا۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، مومنوں کی ماں، اور یہ خاندان کہ کیا کہنے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن صحابیہ اور خود بھی صحابی، بہن صحابیہ بھی اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی، اور یوں ام المومنین۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ ہندہ یہ بھی مسلمان ہوئی تھی، تو یہ چاروں حضرات جو تھے یہ مسلمان ہوئے تھے اور چاروں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عثمان شوکت بابولے شاہ کے نگر سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر دعاؤں کے ساتھ مسنون لکھا ہوتا ہے، یہ بعد کی مسنون دعائیں، پہلے کی مسنون دعائیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ لفظ مسنون کے کیا معنی ہے؟ مسنون مانے سنت ہونا، مسنون دعائیں مانے سنت دعائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی یا پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا تو وہ مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ عوام الناس غالباً ہر دعا کو مسنون بولتی ہوگی، تو ہر دعا مسنون نہیں ہوتی، جس کا ثبوت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو اس کو مسنون دعا کہا جائے۔ اگر صحابہ سے ثبوت اور مسنون تو وہ بھی ہو جائیں گی، مفتی صاحب مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ہو تو جائے گی، لیکن عمومی طور پر جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر وہاں پر وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں صحابی کی سنت، فلاں صحابی کا طریقہ کار ہے۔ اور پھر یہ مسنون کے اصل میں کوئی چیز سنت سے کسی چیز کا ثابت ہونا، اس میں پھر علماء کی مختلف تعریفات ہیں۔ بعض علماء نے جو چیز اجماع کے ذریعے ثابت ہو اس پر بھی مسنون کا اطلاق کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو مسنون کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور عوام الناس کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا مسنون، جیسے انہوں نے پوچھا نا، تو عام طور پر لوگوں کو یہ دعاؤں کو مسنون دعائیں بولتے ہیں۔ اور کتابوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مسنون دعائیں، پھر اس میں مختلف دعائیں ہوتی ہیں، جو مسنون نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اشفاق رضا اتاری ہے، میرا تعلق عارف والا ضلع پاک پتن شریف پنجاب پاکستان سے ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے
کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال لیتا اور نہ گرد و پیش کی خبر. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ القبی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے. ایک تو سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے. تمام طلباء ان کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے، لیکن حضرت سیدنا داتا علی اجویری مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی. استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے. اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم. عجیب منظر تھا. سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا، خدا کی قسم یہ بچہ اللہ پاک کی طرف راغب ہے. ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا یہ مدنی قافلہ جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صفورہ کے اندر فیضان ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوا ہے، اور یہاں یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں اور یہ قافلے کے داعی تھے. مدنی دورے میں ہم نے نیکی کی دعوت دی تو اس میں ہم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ انہوں نے نماز مغرب بھی ادا کی اور ان کا پرانا نام کامران تھا. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ان کا آپ نیا نام نشان فرما دیں اور مغفرت کی دعا فرما دیں ہمارے لیے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہ مدنی قافلے میں تھے فیضان ابن مسعود کے، اور وہاں یہ مدنی محمد نام رکھیں اور پکارنے کے لیے جعفر رضا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ مبارک ہو. اللہ کریم ایمان پر ان کو بھی استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے. یہ مدنی قافلے کی بڑی پیاری بہار ہے. یہ 22، 23، 24 مارچ کو بے شمار مدنی قافلوں نے باب المدینہ اور پاکستان سے دیگر شہروں سے سفر کیے تھے. تو یہ باب المدینہ کے ایک مدنی قافلے کی غالباً بہار ہے، مدنی بہار ہے. بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دیکھو بے عدد کافر مسلمان ہو گئے. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، سرکار کی. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. فیضان دعوت اسلامی، فیضان مدنی قافلہ. فرمان افطاری کھانے وال شیر سے بات کرو. امیر اہل سنت کی عرض ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے گا کہ ہمیں مدینے کا ٹکٹ مل جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. درود شریف کی کثرت کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب مکان چاہیے تو اس کے لیے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور مکان لیتے ہیں. دکان چاہیے تو اس کے لیے بھی رقم جمع کرنی پڑتی ہے. شادیوں کے لیے بھی رقمیں لوگ جمع کرتے ہیں اور
दीगर जो भी काम होते हैं इसके लिए रकम जमा करने का जहन होता है। तो इसी तरह हज के लिए, उम्रे के लिए, मदीने पाक की हाजिरी के लिए भी दूसरों की जेब पर नज़र रखने के बजाय मेहनत मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लिए जाएं, और जब पैसे जमा हो जाएं तो मदीने की हाजिरी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। SMS के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। सवाल है कि क्या अल्लाह पाक की रहमत से मायूसी कुफ्र है? इसकी सूरत है, कुफ्र की भी सूरत है इसकी। मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएंगे। कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब में इसकी वजाहत की हुई है कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़रत फरमा ही नहीं सकता। जब इस तरह का एतक़ाद हो जाए तो फिर ये कुफ्र की सूरत बनती है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शाहिद है, मैं मरोट ज़िला बहावलनगर पंजाब से हूँ। या सैयदी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हालत एहराम में निकाह फरमाया था? जी हाँ, उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये एजाज़ हासिल है कि उम्मत मुस्लिमा को कई मसाइल का हल आपके ज़रिए मिला है, जिनमें से एक मसला हालत एहराम में निकाह करने का भी। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आपसे निकाह फरमाया उस वक्त हालत एहराम में थे। जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हालत एहराम में निकाह फरमाया। चुनांचे से मसला मालूम हो गया कि मुहर्रिम यानी जिसने हज या उम्रे का एहराम बांधा हो उसको इस हालत में निकाह करने की शरअन इजाजत है। एहराम में निकाह हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई दाढ़ी रखे तो घर वाले कहते हैं अभी दाढ़ी ना रखो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी से बूढ़े हो जाओगे। घर वालों का ऐसा कहना कैसा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, ये घर घर के मसाइल है। तो दाढ़ी रखने से बंदा बूढ़ा तो नहीं होता, बल्कि मर्द और औरत की इसमें शनाख्त हो जाती है कि औरत के दाढ़ी नहीं होती, मर्द की दाढ़ी होती है। तो अब ये कि जो दाढ़ी मुंडाते हैं वो औरत से मुशाबहत करते हैं, उलमा ने लिखा है कि औरत की नक्काली है ये। और ये क्या अभी उम्र ही क्या है, तो ये बिल्कुल फजूल सी बात है। किसी की गारंटी नहीं है कब तक जिंदा रहेगा। रोजाना बच्चे भी तो फौत होते ही हैं ना, छोटे लड़के भी फौत होते हैं। शादियों की बारात में से दूल्हा को मौत उचक लेती है। तो इसलिए इसकी तो किसी के पास गारंटी नहीं है कि कितनी उम्र तक ये जिएगा। लिहाजा जब दाढ़ी निकल आई, बालिग हो गया है और अब दाढ़ी निकल आई है, तो इस पर रखना वाजिब हो गया कि एक मुट्ठी तक ये दाढ़ी रखे। एक मुट्ठी से घटाना, जैसे आजकल रवाज है कि दाढ़ी मुंडाने का रवाज कम हो गया, अब थोड़ी सी रखते हैं। तो ये दाढ़ी मुंडाना या थोड़ी सी रखना, एक मुट्ठी से कम, एक मुट्ठी से भी काफ़ी कम होती है, तो ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो जो भी हाजरीन नाजरीन सुन रहे हैं वो मेहरबानी करके, रजब का महीना है, सच्ची तौबा करें। नेकियों का बीज बोने का, इबादत का बीज बोने का महीना है, तो इसमें दाढ़ी का भी बीज बो दें और दाढ़ी मुबारक सजा लें पूरी।
इंशाअल्लाह दोनों जहाँ की भलाई हासिल होंगी। बाकी ये छोटी दाढ़ी खुदा जाने किस फिल्म एक्टर ने रखी जिसकी नकल में अब ये छोटी रखने लगे हैं। पहले मुंडाते थे, खैर मुंडाना भी गुनाह ही था, छोटी रखना भी गुनाह है, तो पूरी रखें तो मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद की रखें। सकरन जिला नवाबशाह वाले भी रखें, ये भी दाढ़ी बढ़ाएं, नियत करे सारे सबको बढ़ानी चाहिए। माशाअल्लाह सकरन में काफी ईसाई भाई इस वक्त जमा है। मरहबा, भले करे आया। सल्लु अलल हबीब। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता, क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। और दाढ़ी है इमामे है जुल्फों की बहारें हैं, देखो दाढ़ी है इमामे है जुल्फों की बहारें हैं, फैशन को हया आई फैजान मदीना में, फैशन को हया आई फैजान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैजान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैजान मदीना में, फैजान सुन्नत फैजान मदीना। मेरा नाम सुहेब अब्बास है, मैं मरोड़ जिला बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दूसरे के बारे में किस तरह की राय रखती थीं? ग़ज़वा सुरैसी से वापसी के मौके पर मुनाफिकों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई और इस तोहमत का खूब चर्चा किया, जिससे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना पहुँचते ही सख्त बीमार हो गई। आप पर्दा नशीन तो थी ही, साथ ही साहिब फिराश भी हो गई, बिस्तर पर भी आ गई, लिहाजा आपको इस तोहमत की बिल्कुल खबर न हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी पाक दामनी का पूरा इल्म यकीन था, मगर चूंकि आपके घर का मामला था इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बराअत और पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही इलाही का इंतज़ार किया। इसी सिलसिले में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अहवाल के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कसम खाकर ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने कान और आँख की हिफाजत करती हूँ, खुदा की कसम है तो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अच्छी ही जानती हूँ। ने उम्महातुल मोमिनीन जो थी ये सहाबियात थी, ये आजकल की औरतों की तरह जैलिस और हसद खोर और एक दूसरे की बुराइयां और गिबतें करने वालियां नहीं थी। तो इन्होंने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अच्छाई बयान की, ये इनकी मोहब्बतें थी। काश हमारी ईसाई बहनें भी इससे दर्स हासिल करें। आज तो एक बहन दूसरी बहन को गवारा नहीं करती, पड़ोसन को बर्दाश्त नहीं करती,
माँ बेटियां भी एक दूसरे के पीछे लगी रहती हैं, एक दूसरे की कुटती रहती हैं बाद औक़ात। तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि कर भला हो भला, अच्छा ही गुमान रखना चाहिए, हुस्न ज़न ही रखना चाहिए, क्योंकि बदगुमानी जो है ये खुद गुनाह का काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई इंसान किसी की गीबत कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई कफ़ारा भी है? गीबत करे तो तौबा कर ले, सच्ची तौबा करे, और अगर उसको पता चल गया जिसकी गीबत की है तो उससे माफ भी करवाना होगा। जिसकी गीबत की उसको अगर पता चल गया तो उससे भी मुआफ करवाना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अख्तारी है। अमीर अहले सुन्नत के और आपके घुटने का दर्द ठीक हो गया है। अल्लाह ताला मेरे पीर को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मेरे लिए दुआ की मदनी मुन्ने ने, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलो, आपने याद तो किया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। घुटने के दर्द का तो आपने दुआ कर दी, इंशाअल्लाह खैर है। फारूक आजम भी बच्चों से दुआ करवाते थे मगफिरत की। इन्होंने मेरी मगफिरत के लिए बेटे दुआ किया करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने तो हसन रजा को भी सिखाया हुआ है, 3 साल का मदनी मुन्ना हमारा, तो वो दुआ करता है जब कहलवाते हैं तो कि या अल्लाह बापा को बख्श दे। ये अपनी जबान में बोलता है, वैसे ही है। मदनी काफिलों से मुझे आज कुछ इतलाई मिली फारूक आजम की सुन्नत है बच्चों से दुआ करवाना मगफिरत की। माशाअल्लाह। मदनी काफिले के मुसाफिर अभी आएगा, अभी तक पहुंचा नहीं है जी, अभी उम्मीद तो है। मदनी काफिलों के मुसाफिरीन ने दुआओं का सिलसिला किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ने अपनी कारकर्दगी भी दी थी कि अमीर अहले सुन्नत की सेहतियाबी के लिए दुआएं भी हुई हैं और सलातुल हाजात भी पढ़ी हैं, और मतलब इस तरह से कुछ उन्होंने कारकर्दगी पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए, इनकी दुआएं कबूल फरमाए और मुझे जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा दे। गुनाहों के अमराज ने भी थका दिया है, अल्लाह इस बीमारी को भी दफ़ा फरमाए। आमीन। असल बीमारी तो गुनाहों की है, जिस्मानी बीमारी तो कम ज़्यादा हर एक को कुछ ना कुछ होती है, ज़रा एज फैक्टर भी है। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और अज्र भी अता फरमाए। खुदा तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, मेरे तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत, या रसूल अल्लाह, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत, या रसूल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि एक बड़े ही अहम मौजू पर हमारे एक फ़ेसबुक पेज पर किसी ने तवज्जो दिलाई है कि चुगली जो है ये हमारे माशरे का एक बड़ा ही नासूर बन चुका है और इसके ज़रिए से बहुत सारे झगड़े ख़ानदानों में आपस में पैदा किए जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि चुगली के दर्दनाक अज़ाब के हवाले से बयान करें और ये फरमाएं कि ये जो गुनाह है ये माशरे से कैसे ख़त्म किया जा सके, इसके बारे में कुछ तफसीली मदनी फूल इरशाद फरमाएं। हदीस पाक में चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, और भी बहुत इसकी वहीदें हैं। अब चुगली है क्या ये भी लोगों को नहीं पता होता, और जो यानी यूं चुगली को बुरा बोलेंगे लेकिन खुद चुगली कर रहे होते हैं, ये इनको एहसास नहीं होता करने वालों को। तो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से
उसकी मतलब यानी कि जिसके सामने बुराई की गई ना, जिसकी वो बुराई उसको पहुंचा देना। मसलन ये कि तुम्हारे बारे में फुला ये कह रहा था, पता है तुमको, पता चला तुमको, तो वो यूं बोल रहा था। ये आजकल आम है, और अगर कोई किसी की बात पता चल जाए ना तो यानी कि पेट चढ़ जाता है। तो दोनों को लड़वाने की नीयत से, फसाद करवाने की नीयत से ये बात पहुंचाना, ये दरअसल चुगली कहलाता है। तो ये है तो आम। बहू और सास, मियाँ बीवी, भाई बहन, माँ बेटी, इनमें भी चुगलियों के जरिए मसाइल तो होते हैं। तो इसलिए वो चुगली से बचना चाहिए। और ये मुआशरे का नासूर है, चुगली भी, गीबत भी, झूठ। तो एक नहीं है, हजार नासूर जमा होकर सब इल्म दीन की कमी के बाइस ऐसा हो रहा है। अगर दावत इस्लामी के 12 मदनी काम सब ओढ़ लेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा जो है ना बहुत सारे गुनाहों से पाक हो जाएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह चुगली से भी पाक होगा इंशाअल्लाह। आप सब मिलकर दावत इस्लामी के मदनी काम करते रहें, सुन्नत आम करते रहें, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। ज़रा खाली कुड़ने से नहीं होगा, काम करने से होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद चिराग चिश्ती अत्तारी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है, रिसाला है सदक़े का इनाम, पेज नंबर 7, तर्जुमे कंजुल ईमान है, कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुनाह बढ़ा दे। एक कर्ज हसन क्या होता है, इसके बारे में सराह रहनुमाई फरमा दीजिएगा। कर्ज़ हसना की एक तफसीर तो ज़कात के अलावा दीगर सदक़ात के साथ की गई है। नफली सदका करना, अपने महारीम पर ख़र्च करना, जिनका नफ़क़ा है उसके ऊपर उसको ख़र्च करना, और बाज़ के नज़दीक हर वो माल जो अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च किया जाए उन तमाम को कर्ज़ हसना कहा जाता है कि अल्लाह ताला उस पर ज़्यादा अता फ़रमाएगा। कर्ज़ हसना के बारे में हमारे यहाँ ये मशहूर है कि कर्ज़ हसना वो होता है कि जो किसी को कर्जा दो और फिर भूल जाओ। जब इसको देना हो तो दे सके तो दे, वरना ना देना हो तो ना दे। तो ये हमारे यहाँ कर्ज़ हसना की अवामी तारीफ तो ये है। हालांकि हर कर्ज अच्छा ही कर्ज है। किसी को, मुसलमान को एक खैर ख्वाही की नीयत से किसी ने कर्ज दिया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इरफान अब्बासी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अंगूठी कितने वज़न की पहननी चाहिए, और एक ही अंगूठी अगर पहननी चाहिए तो मतलूबा वज़न में अगर 2 अंगूठियाँ हों तो क्या 2 अंगूठियाँ पहन सकते हैं उसी वज़न के अंदर जितने वज़न की एक अंगूठी पहनी जाती है। चांदी की एक अंगूठी, ये मर्द के लिए, औरत के लिए ये कायदा नहीं है। मर्द के लिए कि चांदी की एक अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशे से कम हो, और एक नग होना उसमें ज़रूरी है। नग माने पत्थर है या प्लास्टिक का नग है जो भी है, तो इसका वजन काउंट नहीं होगा। तो उसी वजन की 2 अंगूठियां पहनेंगे तो ये जायज़ नहीं है। वही बस एक अंगूठी पहनना जायज़ है। और ये भी सुन्नत इसको नहीं कह सकते, बचना बेहतर है। अलबत्ता जिसको मोहर लगाने की ज़रूरत हो ना, उसके लिए सुन्नत है। अब मोहर भी अंगूठी से लगती नहीं है, देखा नहीं है कहीं कोई अंगूठी से मोहर लगाता हो। अब तो स्टैंप बनी बनाई आती है, वो लगाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना। सवाल है कि हम अपने वालिदैन को नेकी की दावत किस तरह दें? इनकी फर्मा बरदारी करके।
इनकी फरमाबरदारी करेंगे, इनके सामने नजरें नीची करके बात करेंगे। जब ये आए तो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे इनके आगे ताजीमन। तो जब इस तरह का सलूक करेंगे ना, तो बात भी इनकी आवाज से धीमी रखेंगे, इनके सामने खूब एहतराम करेंगे। तो आपका ये एहतराम करना, और इनका हक है कि आप इनका एहतराम करें। औलाद के लिए माँ बाप का हक है कि औलाद इनका एहतराम करे, ताजीम करे, इनका दिल खुश करे, इनकी फरमाबरदारी करे। तो इस तरह करेंगे तो ये बेहतरीन नेकी की दावत साबित होगी। अब आप जो भी कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, वरना ये कि आप अड़ाउड़ी करेंगे तो फिर ये माँ बाप को इस तरह नेकी की दावत तो दी नहीं जा सकती, ना माँ बाप को ना किसी आम आदमी को। तो हमारे ये होता है कि अवाम के सामने तो जी जनाब लब्बैक मुस्कुरा मुस्कुरा कर पीछे पीछे जाते हैं। माँ बाप के सामने शेर बबर होते हैं और चीख कर बात करते हैं, तो कहाँ नेकी की दावत असर करेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि अभी तो बिलखुसूस ये माँ बाप को नेकी की दावत देने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अगर आम तौर पर ये देखा जाए कि जिसको भी नेकी के कामों से करीब लाना है, यानी जिसको हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इनफरादी कोशिश करना कहते हैं, तो अगर हम अपने पड़ोसी को नेकी की दावत देना चाहते हैं, अपने घर वालों को नेकी की दावत देना चाहते हैं, या जो भी हमसे मिलते हैं जिनके जो हमारे करीब आते हैं, उनको अगर हम नेकी के कामों के करीब लाना चाहते हैं, नमाज़ों की तरफ लाना चाहते हैं, तो क्या ये अंदाज़ सब जगह ही अगर इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर उनका अदब किया जाए, उनके साथ उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको थोड़ा सा एक मान दिया जाए, तो ये बात कबूल करवाना इसमें हमारे लिए आसानी नहीं होगी? शरीयत के दायरे में रहकर हर मुसलमान का एहतराम तो है, तो एहतराम करेंगे ना तो उस पर असर पड़ेगा। जबकि हम फजूल बातें और इसके साथ फ्रीशिप नहीं करेंगे, फ्रीशिप करेंगे ना तो इतना असर नहीं पड़ेगा। बात बात में कह के मारते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कभी तंज कर देंगे, कभी उसका मजाक उड़ा देंगे, कभी उसकी सबके सामने बेइज्जती कर देंगे, और फिर बोलेंगे यार आप नमाज पढ़ा करो, फजर में उठा करो, तो वो लिफ्ट भी नहीं कराएगा। तो इसलिए मान देंगे तो ही लिफ्ट कराएगा वो, और उसके दिल में हमारी बात उतरेगी। है फलाहो कामरानी नरमियो आसानी में, है फलाहो कामरानी नरमियो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यूट्यूब पे सवालात का सिलसिला है। एक सवाल आया है कि तिजारत के हवाले से आसान मालूमात कहाँ से हासिल की जा सकती? बाहर शरीयत के 11वें हिस्से में, मेरे ख्याल में 11वें हिस्से में बिजनेस के मसाइल हैं, और इहया उल उलूम की शायद दूसरी जिल्द में तिजारत के बेहतरीन मदनी फूल, बेहतरीन, ये मुताला करेंगे। इस पे हाजी इमरान शूरा के निगरान ने बड़े बयानात किए इस पर, तो इनके बयानात ये वेबसाइट पर, दावत इस्लामी वेबसाइट पर मिल सकते हैं, तो इनको तलाश करके इनको सुने, अल्लाह करेगा बहुत मालूमात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दारुल तहलील सुन्नत के हमारे मुफ्ती अली असगर साहब का भी एक सिलसिला अहकाम तिजारत, मसाइल ये अपने अहकाम तिजारत जो है ये हर इतवार को मगरिब के बाद 7:20 पर आजकल जो टाइम है उसके हिसाब से ये बराह रास्त जो है वो नशर किया जाता है मदनी चैनल पर। और बाबुल मदीना में जो हमारे इस्लामी भाई हैं उनको मैं एक और दावत भी दूंगा कि निगरानी शूरा के भी इसमें हमारे यहाँ मदनी हलकों का सिलसिला होता है हर इतवार को मगरिब से इशा, तो आप इसमें भी ज़रूर आया करें। निगरानी शूरा की गैर मौजूदगी में दीगर मुबल्लिगीन का भी सिलसिला होता है, तो ये इंशाअल्लाह ये तिजारत के हवाले से काफ़ी मालूमात होगी। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में तिजारत कोर्स भी आप जो है वो ऑनलाइन ये भी कर सकते हैं, इसमें भी दाखिला ले लीजिए, ये भी मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। सवाल किया गया है कि क्या पानी में मक्खी या मच्छर मरा हुआ हो तो उस पानी से
वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं? कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर सवाल है कि बाज़ लोगों को देखा है कि वो नहरों और दरियाओं में पैसे यानी सिक्के डालते हैं और कहते हैं हमारी मुराद पूरी हुई, हमने ये मन्नत मानी थी, सिक्के डालते हैं। तो ऐसा करना कैसा है? अगर वाकई इस तरह सिक्का ये ज़ाया कर रहे हैं कि फेंक देते हैं पानी में, ये तो गुनाह है। माल का ज़ाया करना ये हराम है। बाज़ औक़ात ये कि वो बच्चे तैर रहे होते हैं पानी में और इन पर सिक्का फेंकते हैं तो बच्चे भागते हैं और पानी में वो सिक्का पकड़ लेते हैं। ये और चीज़ है। इसको ज़ाया करने के लिए खतरे में तो डाला इसने, लेकिन इसकी नीयत यहाँ ज़ाया करने की नहीं थी, ये बंदे को देनी थी। तो इसलिए ये वो ज़ाया करना ना हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या तफसीर की किताब जलालैन को वज़ू के बगैर पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? हाँ, तफसीर की किताब को छू सकते हैं बेवज़ू। अलबत्ता जहाँ आयत लिखी है, तर्जमा लिखा है आयत का, बेआईनी उस जगह और बेआईनी यानी ठीक उसके पीछे, उस कागज़ के पीछे नहीं छू सकते। तफसीर दो तरह की होती हैं असल में। एक तो तफसीर वो होती है कि जो जुदागाना तफसीर ही कहलाती है, जैसे हमारे यहाँ तफसीर जलालैन आती है जिसको कलाम बोलते हैं, वो बिल्कुल एक तफसीर जुदा सी होती है, उसमें बहुत सारे हाशिए लगे हुए होते हैं। तो ऐसी तफसीर जलालैन को छूना या जैसे तफसीर सिरातुल जिनान है उसको छूने का तो वही हुक्म है जो अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया। एक तफसीर जो आती है वो बिल्कुल कुरान पाक की तरह होती है, वो कुरान पाक ही कहलाती है। तफसीर जलालैन भी जो बैरूत वगैरह से छपती है वो इसी तरह की होती है कि उसको देखें तो वो मसहफ़ ही होता है, कुरान पाक ही होता है, उसमें साइडों के अंदर सिर्फ तफसीर जलालैन लगा दी जाती है। जिस तरह ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है, नूरुल इरफ़ान है, तो इसको बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगा सकते हैं। ज़िया कोट से अवैस असलम अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या जाने आलम नाम रख सकते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह के सिवा जो भी कुछ है उसको आलम कहते हैं। तो इन सब की जाने आलम पर करोड़ों सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जाने आलम कहा जाता है। अब ये कि नाम यहाँ रखने में मुफ्ती साहब देखो क्या इरशाद फरमाते हैं। वैसे भी इसमें तज़किया है और उमूमी तौर पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है और ग़ालिबन मुसलमानों में ये राइज भी नहीं है। तज़किया यानी इसके अंदर अपने नफ्स की जो है वो बड़ाई बयान करना है, अपनी बड़ाई बयान करना है, तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि जान है वो जहान की, कह दो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। अब्दुर्रहमान अत्तारी, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है अमीर अहले सुन्नत से कि जब हम किसी को इसाले सवाब करते हैं, क्या उस मुर्दे को भी ये पता चल जाता है कि मुझे किसने इसाले सवाब किया है? जवाब इनायत फरमा दें। जी हाँ, उसको पता चल जाता है और जिसका नाम लिया जाए उसको खुशी भी हासिल होती है। यानी सारे मुसलमानों को इसका सवाब पहुंचा, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, सवाब तो जब भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये कि हम अगर उस किसी का नाम लेंगे ना कि मेरी वालिदा को पहुंचा, मेरे वालिद साहब को पहुंचा, तो उनको खुशी ज़्यादा होगी कि मेरे बेटे ने मुझे इसाले सवाब किया। जैसे मेहमान होते हैं तो खाना तो सबके लिए चुना गया, सब खा ही रहे होते हैं। अब किसी को कहते हो आप बराबर खाना, हाँ भाई आप पेट भर के खाना, वो इकबाल भाई, शर्मा नानी जरा अच्छी तरह खाना,
تو جس کا ہم نام لیں گے تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی نا. تو ایصال ثواب میں بھی نام لیتے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے. میرا ثواب تو سب کو پہنچے گا جبکہ ہم نے سب کے لیے ایصال ثواب کیا, ساری امت کے لیے ایصال ثواب کیا, تو جو ایمان پر رخصت ہوئے ان سب کو پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر سوال آیا ہے الیاس رضا خان صلی اللہ تعالی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ 1 ماہ کا جو اعتکاف ہے کیا کوئی کورس بھی کروایا جاتا ہے؟ میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں. اس میں کورس نہیں, کورسز کروائے جاتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی پروپر جس کو بولتے ہیں کورس وہ تو اس میں نہیں ہوتا اس دوران, لیکن یہ کہ مجموعی طور پر بہت کچھ وہاں سیکھنے کو ملتا ہے. روزانہ مدنی مذاکرے 2 اب تک تو ایک عرصے سے ہو رہے تھے, تو اللہ کرے اس بار بھی ہوں, وہ صحت ساتھ دے. تو انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے ہوں گے, پھر اور نمازیں سکھائی جاتی ہیں, دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت نے ابھی جیسے نگران شورا کے بیانات کا بھی جو فرمایا, اور یہ اسلام بھائی کے سوال پر مجھے وہ مناظر جو ہے وہ تصور میں آ رہے تھے کہ نگران شورا کے فجر کے بعد کے بیانات کے بعد جو ہمارے معتکفین کے جو تاثرات ہوتے تھے, اور ایک جو یہاں پر ایک تبدیلی کا ایک جو سما ہوتا ہے, پھر دن بھر میں جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, مدنی مذاکرے, پھر امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاریاں, پھر دعائے افطار کے جو مناظر معاملات, تو ایک بالکل ایک عجب اور الحمدللہ بڑا روحانی ایک منظر ہوتے ہیں, ماحول بن جاتا ہے. تو میں ضرور آج جو جہاں اجتماعی طور پر جمع ہیں اور فیضان مدینہ میں کثیر اسلام میں بھی موجود ہیں کہ 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 1 ماہ کے اعتکاف میں شامل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تم کو راحت کی نعمت اگر چاہیے, تم کو راحت کی نعمت اگر چاہیے, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, بندگی کی بھی لذت اگر چاہیے, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کی ہاتھ اور پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں. میں اس کی انگلیاں کیا اگر کٹوانا چاہوں تو کٹوا سکتا ہوں؟ ہاں, مطلب کہ زائد عضو ہے یہ اور بیکار ہے, کسی کام کا نہیں ہے, تو کٹوانے کی تو اجازت دیتے ہیں یہ ہمارے علماء. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں؟ شرعی حکم یہی ہے کہ اسے کاٹ سکتے ہیں, یعنی یہ جو چھٹی انگلی ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. میرا نام ذوالفقار علی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ حضرت صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو درود پڑھتے ہیں صلو علی حبیب, یہ کس حدیث میں ہے یا کن کا طریقہ مبارک ہے, کن کی سنت ہے یہ؟ قرآن کریم میں صاف حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب وہ کسی نے اردو میں اگر کہا کہ درود شریف پڑھیے, جسے ہمارے ہاں مقررین کہتے ہیں محبت سے جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے, تو اس میں کیا منع ہے؟ جب قرآن نے فرما دیا کہ درود و سلام پڑھو,
تو بندہ اپنی زبان میں کہہ لے کہ درود و سلام پڑھو. تو اس طرح وہ مدینہ شریف میں نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ جگہ بورڈ ہوتے ہیں, جگہ جگہ یا کہیں کہیں صلی علی النبی. ایک تو یہ بورڈ دیکھے تھے میں نے, اور دوسرے جب جھگڑا ہو جاتا حاجیوں میں کہیں تو وہ بولتے ہیں بعض اوقات صلی علی النبی. لڑائی معاف کرو, اپنا دل صاف کرو, درود شریف پڑھو. تو بہرحال یہ کہ یہ انداز مجھے پسند آیا, اور مجھے یہ خیال رہ گیا کہ یہ لوگ صلو علی الحبیب بولتے ہیں, صلی علی النبی میں بھول گیا تھا. تو میں نے وہ صلو علی الحبیب کہنے کی ترغیب شاید ایک بار دی تھی میں نے ہفتہ وار اجتماع میں, کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں صلو علی الحبیب کہوں اور لوگ صلی اللہ علی محمد کہیں, اور یہ چل پڑا. سنیوں کو تو درود شریف میں مزہ آتا ہے نا, میٹھا میٹھا لگتا ہے درود شریف, اور کیوں نہ میٹھا لگے, ہے ہی میٹھا, شہد سے بھی میٹھا ہے. تو یوں الحمدللہ یہ رائج ہو گیا صلو علی الحبیب, اور اس کا جواب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ صلی اللہ علی محمد ان سے نہیں سنا تھا جواب میں, یہ بس رائج ہو گیا ہمارے یہاں اللہ کی رحمت سے. اور ایک اچھا کام ہے, بدعت حسنہ ہے, اور اس کا ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا, اور جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, اور ان سب کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب جس نے جاری کیا اس کو بھی ملے گا, اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. جس نے یہ نہیں کہ ان کا ثواب میں کٹوتی ہو کر جاری کرنے والے کو ملے گا, کٹوتی نہیں ہوگی, اس کو پورا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج پر عبداللہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے اچانک انتقال پر اس کے قریبی عزیز کو بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بہت بیمار ہے, آپ جلدی گھر آ جائیں, جبکہ وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے. یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ قریبی عزیز کو تکلیف نہ ہو, تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو جھوٹ یہ, اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایمرجنسی ہے جلدی آ جاؤ. تو ایمرجنسی میں سخت بیمار ہوگا تب بھی ایمرجنسی ہے, فوت ہو گیا تب بھی سارے ایمرجنسی ہی, اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے. تو یہ محتاط جملہ ہے, مگر عوام تو بس یار العوام کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہے, کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. خامہ کا وہ گناہ بھرے جملے یہ بولتے, آلٹرنیٹ ہوتا ہے, مگر اس کی طرف یہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج اس کی موت کی خبر ہم دے رہے ہیں, کل ہماری موت کی خبر بھی مشتہر ہوگی. مرنا تو سب کو ہے, کسی کو موت سے فرار تو ہے ہی نہیں نا. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. نگران شورا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا لائیو کال پر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی اعتکاف کے حوالے سے ماشاءاللہ مدنی پور ملے, اور کیا کیا ملے گا تو میں کیا چلے حاضری کال کے ذریعے دے کر عرض کر دوں کہ ملتان میں ہم مطلب وہ جو پاکستان میں مختلف تنظیمی ہمارے جو تقسیم ہے, تو رضوی ریجن یہ ملتان اور اس کے آس پاس کے مختلف بڑے بڑے شہر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس بار ماہ رمضان میں یہاں سے شعبہ تعلیم والوں نے ایک ٹرین کی نیت کی ہے, اور باقی جو ریجن کے جو اسلامی بھائی ہیں جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ والوں نے ایک ٹرین کی نیت کی ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹرین کی نیت کی. تو امید ہے کہ یہ ملتان اور اس کے آس پاس کے مختلف علاقوں سے
इनकी अब तक की जो नीयतें सामने आई हैं, तो इंशाल्लाह ये 2 ट्रेनें ला रहे हैं आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ की सादत पाने के लिए पूरे माह के लिए। सुभान अल्लाह। इसमें ये हुआ है कि हमने इनको अर्ज किया है कि लाना किसको है, क्योंकि अब रजबुल मुरज्जब का ये मतलब कि समझे कि वो आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो यानी आधा रजबुल मुरज्जब खत्म हो गया, तो अब शाबानुल मुअज़्ज़म में इनकी टिकटें वगैरह सभी ट्रेनें वगैरह बुक करानी होती हैं, छुट्टियां लेनी होती हैं। तो इसमें अर्ज किया है कि मतलब कि आप कोशिश कीजिएगा कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में सीखने सिखाने का बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अल्लाह की करो रहमत, तकदीरें बदलती हैं आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के इत्तिकाफ में। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में तकरीबन 19 मकामात पर पूरे माह का इत्तिकाफ हो रहा है। ज्यादा मकामात तो होता था, लेकिन इसको मस्जिद मैनेज करने के लिए मुबल्लिगीन अच्छे से अच्छे इनके साथ बैठे, इसके लिए हमने इसको रिड्यूस किया है। तादाद अल्लाह ने चाहा तो पिछले साल से ज्यादा होगी एक माह के मुअत्तकिफीन की, लेकिन हमने एरिया मतलब मसाजिद इसमें कम कर दी। तो इसमें मेरी यही मदनी इल्तिजा है तमाम इस्लामी भाइयों से कि आप जो फैज़ान मदीना आलमी मदी मरकज़ का जो सफ़र फरमाएं, तो उसमें जिन जिन इस्लामी भाइयों को आप अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, तो उनमें जो असल मियार आपको सामने रखना है, तो मैं चाहूँगा कि उस मियार पर अमीर सुन्नत कुछ मदनी पुल एक बार फिर इरशाद फरमा दें, ताकि उस मियार को सामने रखकर इस्लामी भाई तैयारी करें और उसके मुताबिक लाएं। वैसे आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे पास जो जो गुंजाइश होती है, वो 4,500-5 हज़ार मुअत्तकिफीन की हम गुंजाइश रखने की कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क से इस्लामी भाइयों की आमद का सिलसिला रहता है, तो इसमें मियार को जरूर सामने रखिएगा। तो मैं अमीर सुन्नत से अर्ज करता हूँ कि अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं तो कुछ मियार बयान फरमा दें, किस तरह की इस्लामी भाइयों को मुअत्तकिफ करने इत्तिकाफ के लिए लाया जाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें सुलझे हुए इस्लामी भाइयों को लाना चाहिए। अब वो ट्रेन का आपने बोल दिया ना, अब इनको ट्रेन भरनी है, इधर उधर से पैसे पकड़ के ये बुजुर्गों को लाते हैं, 80-80 साल के बूढ़े बेचारे फालेज के मरीज, और कोई बेचारे समझते भी नहीं होते। सिलसिला चल रहा है, ये बीच में सो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, झाड़ेंगे, इस्तिंजा खाने पर भीड़ होती है, उधर लड़ाई कर देंगे। ये कुछ ना कुछ इनके मसाइल होते हैं, फिर बेचारे बीमार पड़े होते हैं, बाद जाके हॉस्पिटल में बिस्तर संभाल लेंगे, क्लिनिक भी है ना। तो ऐसों को तो तकलीफ ना दी जाए। 50 साल ये समझो लिमिट है, इससे नीचे हो, 50 साल से ऊपर उम्र ना हो, और फिर अगर कम उम्र है, भले जवान भी है, बीमार ना हो। कैंसर के मरीज ले आते हैं, अब गरीब को गले का कैंसर है, हमदर्दी बिल्कुल इसकी 112% हमें हमदर्दी इससे, लेकिन अब गले का मरीज मुअत्तकिफीन में बैठेगा, खाने के जब वक्त आया इफ्तार का, सब खा रहे होंगे, ये शक्ल देख रहा होगा, अब बताइए दूसरे खाएंगे कैसे? कि ये बेचारा तकलीफ में होगा, दूसरों को तरस आएगा, उस पर अपना खाना उनका दुश्वार हो जाएगा। या ऐसे मरीज ले आते हैं कैंसर के जिनका जख्म है और जख्म से बदबू आ रही है, तो मस्जिद का दाखिला वैसे ही हराम है कि जिसके जख्म से या मुंह से या कपड़ों से बदबू आ रही हो। फालिज के मरीजों को देखा, उनको उठा लाते हैं। तो मेहरबानी करके जवान भी हो तो ऐसा मरीज ना हो कि जिससे दूसरों को भी परेशानी हो, खुद भी बेचारा परेशानी में पड़ जाता होगा, फिर लाने वालों को कोसता होगा, जिद करता होगा कि मुझे वापस पहुंचाओ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना रश होगा, यूं होगा और यूं होगा। तो इसलिए वही क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो। फिर ये भी जहन में रखे कि मुलाकात नहीं होगी रमज़ान शरीफ में, खास कर यानी कि मुलाकात की तरकीब नहीं हो पाती, रात भी छोटी होती है और मदनी मुज़ाकरा ख़त्म होता है, शुरू देर से होता है, तरावी होती है, फिर वो साहरी का भी वक्फा होता है, तो ये तरकीब बनती नहीं है। तो इसलिए मुलाकात का जहन तो वैसे भी सबसे मुलाकात तो वैसे भी नहीं होती,
तो मुलाकात का जहन लेकर ना आए। बच्चों को उठा के ले आते हैं, फिर वो जिद करते हैं, शोर से लगाते हैं, मेरे बच्चे से मुलाकात, मेरे बच्चे से मुलाकात। अब अगर रहम खाकर बच्चों से मुलाकात कर ले आदमी, तो 2 बच्चे से मुलाकात की ना, तो फिर इन्होंने डंका बजाना कि हमारे बच्चों से मुलाकात हो गई, तो दूसरे दिन 10 और आ गए, तो ये 12 हो जाएंगे। फिर बच्चे जो है ये मस्जिद में फिर कबड्डी खेलेंगे और एक दूसरे के पीछे दौड़ते होंगे, बाप तरावी पढ़ रहा है और पीछे ये शोर मचा रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे के इसका मसला सुन ले कि ऐसा बच्चा कि जिसका गालिब घुमाने की पेशाब वगैरह कर देगा मस्जिद में, तो उसको तो पेम्पर बांध कर भी लाना जायज नहीं है। और ऐसे बच्चे के जिनसे जो बता देते हैं लेकिन है बच्चे और गालिब घुमाने के पेशाब नहीं करेगा, बता देता है, फिर भी ऐसों को लाना मकरूह तंज़ीही, नापसंदीदा। और ऐसे बच्चे जो मस्जिद में भले बड़े 10 साल के हैं, मगर क्या शोर मचाते हैं मस्जिद में, इधर उधर भागते हैं और मस्जिद का एहतराम पायमाल करेंगे, दूसरे नमाजियों के लिए तकलीफ का बाइस बनेंगे। ये हर मस्जिद में जहाँ जहाँ थोड़ा आबादी होती है ना, वहाँ तरावी में ये तकरीबन सबको तजर्बा होगा कि बच्चे कितना हल्ला गुल्ला करते हैं मस्जिद में। तो ऐसे शरारती बच्चों को, शोर मचाने वाले बच्चों को भी मस्जिद में लाना गुनाह है। लाने वाला गुनाहगार होगा, जबकि पता है कि ये मेरा बच्चा, बच्चे को बाप जानता होता है ये कैसा है। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि हैं समझदार, 8-9 साल के हो गए, अकेले होंगे तो शराफत से बैठे रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 1 से 2 हो गए, हट जाओ अब हमारी बारी है। फिर इन्होंने जो मतलब मस्जिद को सर पर उठाना है वो अपनी जगह होता है। तो इसलिए आप अपना बच्चा बोले यार मेरा बच्चा तो शरीफ है, तो दूसरे का जब बच्चा आता है तो उसका भी वो भी शरीफ समझ कर ही लाया होता है। और फिर ये दोनों शरीफ जब मिलते हैं ना, तो फिर जो शराफत की धज्जियां बिखेरते हैं, इसका तजर्बा बहुत सौ को होगा। तो इसलिए मेहरबानी करके बच्चों को अपने साथ मत लाइएगा, नहीं तो ये शोर शार करेंगे और आपको पता है फिर भी लाएं तो गुनाहगार होंगे। और शोर करें भी तो फौरन बच्चे को यानी लाएं क्यों? अब भूल में कोई ले आया और देख रहा है कि बच्चा ये कर रहा है तो उसको रोकना वाजिब है, या तो उसको इस तरह संभाल कर बिठा ले या फिर कहीं भेज दे। तो ये इससे और भी परेशानी होगी, बच्चा बच्चा होता है। अब मदनी मुज़ाकरा अपना बिल्कुल वो जा रहा है, वो बेहतरीन उसका हिस्सा है और उसमें आपको भी सुनने में मजा आ रहा है, पिक पर है वो। अचानक उसने बोलना है अब्बू अब्बू भूख लगी है, बच्चा बोलता है ना भूख लगी है, अब्बू पानी पीना है, अब पिलाओ उसको पानी। और आपके मसाइल और 2-4 के और के मसाइल जो बेचारे सुने उनका हाल, अब्बू मुझे वो फिर वो पेशाब के इशारे करेगा, अगर नहीं ले जाते तो फिर वो वहीं कर देगा, कर भी देते हैं, उठा लाते हैं मस्जिद में, करते हैं गड़बड़े बच्चे। तो इसलिए मेहरबानी करके बच्चों को नहीं लाएं। फिर बोले नींद आती है हमको, बेचारों को समझ तो पड़ती नहीं है, जब बच्चों को समझ नहीं पड़ेगी तो नींद आएगी। अब वहाँ इनको सुलाओ और इनकी खिदमत करो। तो ये ना सुनते हैं ना समझते हैं, ना आपको सुनने और समझने देंगे। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को न लाएं। ये सारे साल के लिए मेरी मदनी इल्तिजाएं हैं। ये अभी पिछले दिनों भी बहुत सारे मरकजुल औलिया और कहाँ से ट्रेन ने इक्का दुक्का आई थी और वैसे काफिले आए थे, तो बच्चों का बेचारे मानते ही नहीं, बच्चों को उठा ही लाते हैं। फिर मेरे को वो पैकेज, मदनी पैकेज होते हैं मुलाकात के, इनमें आके तंग करते रहते हैं, हमारा बच्चा वो करा है, हमारा बच्चा यूं कर रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है, उसको बड़ा मिलने का शौक है, और तंग करते रहते हैं। अब इन बच्चों पर रहम खाओ, रहम खाना भी चाहिए, तो फिर खुद काबिल रहम बन जाते हैं। फिर इतने बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, बाबुल मदीना के भी आने शुरू हो जाएंगे। और फिर जो ये माहौल बनाते हैं बच्चे, और जो कबड्डियाँ खेलते और हो खो खो लंगड़ी खेलते होंगे, बड़ी जगह है ना फैज़ान मदीना में, तो वैसे ही। तो इसलिए मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ, ना लाएं। और मुल्तान शरीफ के ताल्लुक से मेरे जज्बात तो कई बार इजहार किया है कि वहाँ कुछ रफ क्वालिटीज़ भी हैं, सब नहीं माशाअल्लाह, मदीनतुल औलिया किराम का शहर है, लेकिन कुछ रफ लोग भी हैं। ये रफ लोगों को मत लाइएगा,
वरना ये ऐसा अल्लाह गुल्ला करते हैं, वहाँ लड़ाई करेंगे, शोर मचाएंगे। मुलाकात के उस पर भी इन्होंने बेचारे, उन्हें ये मुल्तान वालों का खासा था कि इन्होंने वो जो बेचारे वो बना रहे थे ना टोकन, उस पर ऐसा हल्ला बोला और टाइम पूरा हो गया। हमारा जो बेचारों का हदफ था वो पूरा हो गया मुलाकात का, और मकसद कि भाई इनको दिया जाएगा, ऐलान हुआ था भागना। इन्होंने ऐसा हल्ला गुल्ला किया कि बेचारों को शायद भागना पड़ा था। हमारे वो जो टोकन बनाते थे, तो ये इस तरह बाज लोग करते होंगे, सब नहीं करते। अच्छे लोग हैं मुल्तान में माशाअल्लाह। दावत इस्लामी का भी बहुत अच्छा काम है, यहाँ तालीम याफ्ता और सुलझे हुए इस्लामी भाई भी हैं, उलमा भी काफ़ी हैं। लेकिन जाहिर है कि वो जो कोठी होती है तो वाशरूम भी होता है। तो अब ये कि आप देख लीजिए, कोठी कोठी होना चाहिए। और ये जो दूसरा नाम लिया ना, इस तरह के बद अखलाक इस्लामी भाई नहीं आने चाहिए। भले ट्रेन ना भरे, आप 5 बोगियों की ट्रेन ले आए, क्या ज़रूरत है आप 25 बोगियों की ले आए? कम बोगियों की लाएं, क्वांटिटी ना हो क्वालिटी हो, या बस भर के ले आए। ऐसे सुलझे हुए हो खौफ खुदा वाले कि बस इनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे उठा कर ले आए रफ क्वालिटी के कि बाहर का कोई बंदा देखने आए तो बदजन होकर चला जाएगा। अच्छा, हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी फैजान मदीना में, तो तू तड़ाक हो रहा था और आपस में लड़ रहे थे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अमीर अहले सुन्नत अला की बारगाह मुहम्मद। में अर्ज़ है कि आज हमारे एक बहुत ही पुराने मुबल्लिग सैयद सादिक बापू जद्दा शरीफ वाले, इनका अभी आज जो है वो इंतकाल हो गया है। तो आपसे अर्ज़ है कि आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमा दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता सैयद सादिक बापू को गरी के रहमत फरमा। या अल्लाह इनके तमाम छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह इनकी कब्र पर रहमतों के फूल बरसा। या अल्लाह इनकी कब्र ताहद नज़र वसी हो जाए। या अल्लाह इनकी कब्र इनके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवों से आबाद हो, नूर मुस्तफ़ा के सदके रोशन हो, बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ हो, जन्नतुल फिरदौस में इन्हें इनके नाना जान का पड़ोस नसीब हो। इनके शहजादगान और सब सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमा। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। बापू के इसाले सवाब के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र की मदनी इल्तिजा। बापू हमारे बहुत पुराने करम फरमाते सादिक बापू, और कई बार जद्दा शरीफ में मैं इनके यहाँ इनके घर पे रहता भी था। जाकर मैं जाता था तो ये अपने घरों पे ठहराते थे, खिदमत करते थे बेचारे। और बहुत पुराने दावत इस्लामी के ऐसे मुहिब थे कि समझो जान लड़ा दे। अल्लाह बेचारों की खिदमत दावत इस्लामी कबूल करे और इनकी मग़फ़िरत करे। हमारे बहुत यानी कि उस दौर के करीबी साथियों में से थे। जद्दा शरीफ के बिल्कुल नुमाया ईसाई भाई थे, यानी कि पहली सफ़ के एक दौर में। अब फिर तो बरसों से ये बाबुल मदीना में आ गए और बीमारी भुगती इन्होंने बेचारों को, कैंसर हो गया और बस बड़ी तकलीफ़ें उठाई। अल्लाह बेचारों की तकलीफ़ों को गुनाहों का कफ़ारा बना दे और इनकी दरजात की तरक्की का बाइस बनाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हसन बापू, हुसैन बापू, सब सब्र कीजिएगा। वालिद साहब का बस टाइम पूरा हो गया था। बहनों को भी सब्र की तलकीन कीजिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह करे आप मदनी चैनल पर इस वक्त हो तो मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ। सब सब्र कीजिएगा, अब्बू के लिए दुआ कीजिए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से चिपके रहिए। हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से हाज़िरी हो, मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी हो। बेचारे बीमारी के आलम में भी कभी कभी मदनी मुज़ाकरे में भी आए हैं ये, लेकिन फिर जाकर ये बिल्कुल ही टूट गए। इनकी बीमारी बढ़ती चली गई तो फिर बेचारे नहीं आ पाते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुमा की हर घड़ी में 10-10 लाख की मग़फ़िरत की जाती है। यहाँ घड़ी से क्या मुराद है? हर घंटा या हर मिनट?
جو فیضان جمعہ کے اندر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ جو 10 لاکھ والی ہے وہ رمضان کے جمعہ کے لیے ہے، یہاں پر جو ہر جمعے کے لیے ہے وہ 6 لاکھ والی روایت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ شرح الصدور میں ہے جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ یا اللہ جو کوئی رسالہ قبر کا امتحان کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے قبر کے امتحان میں کامیاب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہفتہ وار رسالہ جو امیر اہل سنت پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور الحمدللہ کثیر عاشقان رسول یہ امیر اہل سنت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے امیر اہل سنت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ رسالہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں، اور پھر اس کی کارکردگی بھی بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد، جو گزشتہ ہفتے رسالہ اعلان ہوا تھا سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات، تو ملک بھر میں یعنی پاکستان میں سننے والوں کی پڑھنے والوں کی تعداد 5,19,238، 5,19,238، اور پاکستان میں اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی ہمیں ملی وہ 4,05,435، 4,05,435۔ اوورسیز کے اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,897، اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 47,614۔ تو یوں دنیا بھر سے جو اس پچھلے ہفتے کی رسالے کی کارکردگی ہمیں ملی وہ ہے 10,06,184، 10,06,184، یعنی 11 لاکھ کا امیر اہل سنت نے ہدف ارشاد فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ ہفتے ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے ترغیب دلائی تھی، پھر پورا ہفتہ اس کی کچھ تحریک چلی، الحمدللہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر ہو سکے یہ جو رسالہ ہے قبر کا امتحان، بہت ہی اہم، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، بہت ہی رقت بھرا رسالہ ہے، تو اس رسالے کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں۔ بولتا رسالہ بھی موجود ہے، اس رسالے کو حاصل کیجئے، کچھ اسلامیہ کو جمع کر کے سنا دیجئے، تو سب کی کارکردگی بنا کر اپنے ذمہ داران کو پیش کیجئے۔ تو نیت کریں سب مل کر کہ انشاءاللہ یہ جو رسالہ ہے اس میں ہم امیر اہل سنت کے دیے ہوئے ہدف 11 لاکھ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب المصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ
ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بلکہ اے کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، عبادت کا مہینہ جاری ہے، تجھے نیک بندوں کی عبادتوں کا واسطہ، ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کے ان روزوں کا واسطہ، تلاوت قرآن کرنے والوں کا واسطہ، رات بھر نوافل پڑھنے والوں کا واسطہ، ذکر و درود کرنے والوں کا واسطہ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کا واسطہ، علم دین حاصل کرنے والوں کا واسطہ، علم دین سکھانے والوں کا واسطہ۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب فرما، عزت نصیب فرما، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے بھی بچانا۔ یا اللہ، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نگاہی، بد کلامی، دل آزاری، بیجا غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، دل آزاری کرنے سے ہم سب کو بچا لے، اپنی پسند کا ہمیں بندہ بنا لے۔ یا اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کسی حادثے کے سبب آئی سی یو میں ہیں، اے اللہ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس کی لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبتیں، پیار، الفتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، امن و امان عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ، جو حج کرنا چاہتے ہیں انہیں حاجی بنا دے، جو مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے شہر میں رہنے والے عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت کی خیر فرما، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، گر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی
जा रूह चले जब निकल कर बेकसों मजबूर की रूह चले जब निकल कर बेकसों मजबूर की या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसों मजबूर की या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसों बख्श हमारी सारी खताएं खोल दे हम पर अपनी अताएं बख्श हमारी सारी खताएं खोल दे हम पर अपनी अताएं बरसा दे रहमत की बरखा अल्लाह बरसा दे रहमत की बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे 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 आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहंशाहे मदीना सलातो सलाम शहंशाहे मदीना सलातो सलाम ज़ीनत
वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और ये दुआ भी पढ़ लें कि जो ये दुआ 3 मरतबा पढ़े तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने अत्तार, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिद की आल पर नूर की बरसात हो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि शरीयत और तरीक़त का